the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a lot of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou will find a solace there. Again, for this blessed opportunity to be with you this evening. और मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप लोगों के साथ आज ऐसा एक अवसर प्रभु ने दिया है. This is our third and final class of this topic, discipleship. और आज हमारे लिए जो है तीसरी क्लास है और ये आज आखिरी क्लास होगा. In the last two classes, we were going through the marks of discipleship. और पिछले क्लासेस में हम लोग जो एक सच्चे शिष्यत्व का चिन्ह को हम लोग देख रहे थे. I just want to go through quickly what we have been learned through the last two classes. और मैं जो है पिछले दो सत्र में व दो क्लासेस में हम लोग क्या क्या देखे हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूं. The first mark of discipleship was self-denial. और हम लोग देखते हैं कि जो एक शिष्यत्व का सच्चा एक चिन्ह है अपने आप को इनकार करना. Without denying our own self, we cannot be a disciple of Christ. अपने आप को जब तक हम लोग इनकार नहीं करते तो एक सच्चा प्रभु के चेले नहीं बन सकते. And secondly, we discussed that taking up the cross is a second mark of discipleship. और दूसरी बात को हम लोगों ने देखा था कि एक चेले का एक चिन्ह होता है कि अपना क्रूस को उठा करके चलना. That means willing even to die in order to follow Jesus. और उसका अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए मरने के लिए भी वो तैयार रहता है. That's a sign of absolute surrender to the Lordship of Christ. उसका मतलब क्या है? न प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व में Please carry on. Uh,
Some network issue is there. Please continue. Okay. Yeah. So again, taking up the cross means the pain of denying the desires of the flesh to satisfy the desires of the master. और क्रूस उठाने का मतलब ये होता है कि मसीह के लिए मालिक हमारा जो गुरु है उसके लिए हम क्या करते हैं ना दुख और जो है कष्ट और दर्द को उठाना होता है एक मसीह का चेला. And we already discussed about the third mark of discipleship, that is following Christ unconditionally. और तीसरी जो चिन्ह को हम लोगों ने देखा था कि बिना शर्त रखे मसीह यीशु का अनुकरण करना. That means total trust to our master. That means we are admitting that the Lord is my shepherd. उसका मतलब उसका अर्थ क्या है ना प्रभु यीशु मसीह को जो है मान लेना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमारे Yes, sir. Please continue. Yeah. And the fourth mark of discipleship is loving the master. और जो है चौथी चिन्ह हम लोग देख सकते हैं हमारा मास्टर को, हमारा मालिक को हम क्या करें ना उस मालिक को प्रेम करें. We thought that we all are loving our master. और हम जानते हैं कि हमारा जो मालिक को हम सबके सब प्रेम करते हैं. But the master demands 100% of our love. लेकिन हमारा जो मालिक है वो क्या करते हैं न 100% प्रेम हमसे वो चाहते हैं. More than the father, more than our mother, more than wife, more than children, the total love has to be gone or given to the master. और हम जितना हमारा जो बीबी है, बच्चे हैं, माता पिता है, उससे बढ़ करके हमारा जो मालिक है, हमारा जो मसीहा है, उस गुरु को हमें क्या करना चाहिए ना प्रेम करना चाहिए. When we hear this, we may think that it's kind of a cruel statement. जब हम सुनते हैं तो ये जो बातें हैं, ये जो बोली है, एक क्रूरता की बातें करके हम लोग सोच सकते हैं. But we have already gone through these passages. What does it mean? लेकिन हम इन अध्यायों को देखा है कि मसीह यीशु का 100% प्रेम करना, उसका अर्थ क्या है. When we love God with all our heart, all our mind, all our soul, and all our strength, still God is expecting us to love others too. So जब हम परमेश्वर को हमारा सारे शक्ति, हमारे सारे बुद्धि, हमारे सारे हृदय के साथ, हमारे सारी ताकत के साथ उस परमेश्वर को जो हम प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर हमसे ये भी चाहता है कि हम अपना पड़ोसियों को प्रेम करें. That actually means all our love has to go on through the Lord Jesus Christ and to God, and through God we are loving everybody. So हमारा प्रेम जो है परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के जरिए जाए और उस परमेश्वर को देख करके जो है उस परमेश्वर से ही उस प्रेम को हमारा पड़ोसी व हमारे विश्वासी आपस में सभी लोगों को हमारा प्यार मोहब्बत को बांटे. And the fifth thing is being under the yoke of the master. और जो पांचवी विषय हम लोग देख सकते हैं, जो मसीह का चेले का चिन्ह है, क्या है ना उस गुरु के बा उस मालिक का जुआ लेकर के चलना. That means again being under the total control of the one who controls us.
उसका अर्थ क्या है ना, हमें जो संपूर्ण रीति से कंट्रोल करते हैं उसके अंडर में रहना, उसके नीचे रह करके काम करना, बस सीखना। Last week we have come to that level of learning. और पिछले सप्ताह हमने क्या देखा था ना, यहां तक हम लोगों ने चर्चा की थी। Today we are again continuing the 6th mark of discipleship. और आज हम लोग क्या करेंगे ना, एक सच्चे चेले का चिन्ह को, छठवां पॉइंट को, छठवीं बातों को हम लोग देखेंगे। In both two classes, I repeatedly said that this is not a theory class; it is totally a practical class. और उस दिन हम लोगों ने देखा था कि उस दिन एक तथ्य वाला जो अध्ययन नहीं है, व पठन नहीं है, बल्कि ये जो है हमारे दैनंदिन जीवन व रोजमर्रा जीवन में हम लोग कैसे उसको उपयोग करेंगे उस विषय में है। That means even if we study all the marks of the discipleship with our memory, it doesn't matter. और उसका मतलब ये है कि हमारा ज्ञान और बुद्धि के साथ के मसीह यीशु का चेले का जो एक चिन्ह को पढ़ेंगे तो वो कोई बात नहीं होती। If we are not taking a step to these marks of discipleship, we will never become a disciple. लेकिन ये जो सोपान है, ये जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों को चढ़ करके इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए यदि हम लोग नहीं चलेंगे तो हमारा मसीह जीवन हमारा जो शिष्यत्व बेकार है। We all know our salvation is free. It costs nothing. और हम सब जानते हैं कि हमारा जो उद्धार है ये हमें मुफ्त में मिला है और इसके लिए हमने कोई भी मोल, कोई भी दाम हमने नहीं चुकाया है। But the discipleship is costly. It costs everything. लेकिन ये जो शिष्यत्व है ये बहुत कीमती है। So any man can receive the salvation without paying any cost, just by faith, by grace, through faith. Anyone can be saved. लेकिन उद्धार पाना क्या है? कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह से और अपना विश्वास से उस उद्धार को वो प्राप्त कर सकता है। But if you want to be a disciple of Christ, Christ has given these marks of discipleship. लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह के चेले यदि बनना चाहते हैं तो इन चिन्हों का अनुकरण करना पड़ेगा। That's why we have gone through these 5 marks of discipleship from the last 2 weeks. और पिछले 2 सप्ताहों में इसीलिए ही हम 5 जो ऐसे सीढ़ियां हैं, 5 जो ऐसे पॉइंट्स है, उन 5 पॉइंट्स को हम लोगों ने चर्चा की थी। Today we are coming to the 6th one, the learning from the Lord. और जो आज हम लोग छठवीं बिंदु के और हम लोग चर्चा करेंगे, जो हमारा प्रभु है उससे हमें सीखना चाहिए। What does it mean to learn from the Lord? और इसका मतलब क्या है कि हम उस प्रभु से हम कुछ सीखें? It says in Matthew chapter 11 verses 29 and 30, it says, learn from me. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 29 और 30वां वचन में हम लोग देख सकते हैं कि मेरे से तुम सीखो। If one of you can read it in Hindi also, that would be better. ओके, आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उस 11वां अध्याय और 29वां वचन पढ़ेंगे। 11:29 मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Here we read that
take my yoke upon you and learn from me. तो यहाँ पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि मेरे what do we need to learn from the Lord Jesus Christ? हमें क्या उस प्रभु यीशु मसीह से हमें सीखना चाहिए? We need to know him, means personally we need to get to know him. उसका मतलब क्या है कि उस प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से गहराई से हमें जानना चाहिए. Through all these Bible teachings, Bible studies, preaching and reading the Bible, we are learning about Christ. और जब हम ये जो संदेश देना या फिर प्रभु का वचन को पढ़ना, उसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में रोज हम सीख रहे हैं. Anyone can learn about Christ by reading or listening or talking to each other. We can learn about Christ. और कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख सकता है. आपस में बात करना, परमेश्वर का वचन को सुनना, परमेश्वर का वचन को पढ़ना, इसके जरिए वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो सीख सकता है. Even the non-believers know about Jesus Christ in some extent. और अविश्वासी लोग भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में के कुछ दूर तक, कुछ हिस्से तक वो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो जानते हैं. But knowing about him and knowing him is different. उसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना और प्रभु यीशु मसीह को जानना, ये दोनों बातों में भेद व अंतर को हम देख सकते हैं. When I am teaching you, many of you may know about me. जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो तुम मेरे बारे में जानते हो. But Ranjit sir, we were together in Pathanamthitta Bible School for 3 years. लेकिन भाई रंजीत और मैं पतनमतिट्टा बाइबल स्कूल में हम 3 साल एक साथ रहे हैं. We were staying in one building and we were studying in one class, and we were discussing, we were talking. By that, we know each other. उसका मतलब क्या है कि भाई रंजीत के साथ हम एक बिल्डिंग में रहते थे, एक क्लास में पढ़ते थे, एक साथ खाना उठना बैठना सब कुछ हम लोग करते थे. First day of this Bible college, I just knew about Ranjit, but after 3 years I started knowing him. लेकिन पहला दिन जब हम मिले थे तो रंजीत के बारे में मैं जानता था, लेकिन कुछ सप्ताह के बाद मैं रंजीत को जानने लगा. When I started my seminary studies here in Dallas, in the first theology class, one professor taught us about the systematic theology basics. और जब डालास स्कूल में बात थियोलॉजिकल सेमिनरी जो है वहां पर मैं पढ़ रहा था, उस वक्त उन्होंने जो थियोलॉजी धर्मशास्त्र का जो साधारण धर्मशास्त्र के बारे में उन्होंने सिखाया. And he had given us a warning that some of the people who came to know about the Bible, to know about God, finally they became hypocrites. और उन्होंने हमें एक चेतावनी दिया था कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को वो जानता है, वो आने वाला समय में भविष्य काल में वो मतलब देखा गया है कि वो कैसे एक कपटी व्यक्ति वो बन चुके हैं. And the professor warned all the students there that you should never come to this seminary to know about God, know about Bible. You need to be here to know God personally. So उन्होंने सभी लोगों को ये चिताया था कि तुम जब इस सेमिनारी में आते हो तो प्रभु व परमेश्वर के बारे में जानने के लिए तुम नहीं आना, बल्कि क्यों आना ना उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए यहाँ पर आना. इस बात को उन्होंने बताया था. The first day itself, that thought hit to my heart.
और पहले दिन में ही मेरे मन को, मेरे चिंताओं को के आघात किया था। जो सर ने जिस बात को उन्होंने बताया था, वो बात जो है मेरे को आघात किया था। While I was going back from the seminary to my house, this thought was repeatedly pondering my heart. जब मैं बाइबल स्कूल से मैं जब अपना घर को मैं जा रहा था, उस वक्त बार बार मेरे मन में जो है इस बात जो है तैर रहे थे, आ रहे थे। I just prayed while I was going back that like this, Lord, I came here to learn the Word of God, to learn to study the Bible, but not. I pray that I should not be a hypocrite, but I instead of knowing about you, help me to know you more. So जब मैं घर पे गया, उस वक्त मैं यही प्रार्थना किया, इसके बारे में मैं सोच रहा था, व प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, मैं जो इस सेमिनारी में पढ़ने के लिए आया है, मैं आपके बारे में नहीं पढ़ूं, बल्कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपको जानूं। When I came back to my home, I finally I wrote it as a song. In Malayalam it is Ninnodullan Sneham Kurayuvan Idavarille. That means, Lord, when I study the Word of God, I should love you more. Let my knowledge shouldn't puff my mind to a hypocritic condition. So उसके बाद मैं जब घर पे आया तो उसके बारे में मैं सोचता रहा और मैं एक गीत लिखा। वो गीत का बोली मलयालम में है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि प्रभु, मैं जब आपकी वचन को मैं पढ़ता हूँ, जब ज्ञान को मैं प्राप्त करूं, तो मेरे जीवन में कभी भी घमंड ना आए। इस बात को मैंने एक गीत के रूप में लिख लिया। When we look into the life of Apostle Paul, जब हम प्रेरित पौलुस के जीवन के ओर देखते हैं, in Philippians chapter 3 verse 8 he says, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. So फिलिपियों उसका 3 अध्याय 8वां वचन में हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि मसीह यीशु को जानने के लिए मैं सब कुछ को कूड़ा समझता हूं, मैं सब कुछ को व्यर्थ समझता हूं। So how much importance Paul is giving for knowing Jesus Christ personally. और अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से पौलुस जानने के लिए जो कितना महत्वता वो देते हैं। And he is saying that when I am knowing more and more about him, I consider all other my status and position and my wealth and everything, I consider them as garbage. So जब ये कहता है मेरा धन और दौलत सब कुछ को मैं जब देखता हूं, तो ये सब कुछ मेरे लिए कूड़ा है करके वो कहते हैं। We may have many things to boast about. और हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत कुछ विषय होगा, बहुत कुछ बातें होगी जिसके जरिए हम अपने जीवन में घमंड कर सकते हैं। Sometimes people may honor us or respect us in many of the things. और बहुत सारे लोग कुछ लोग भी हमारे जो पद को, हमारा जो पोजीशन को देख करके हमें सम्मान भी देंगे। Many times our wealth or our desire to be famous, that will hinder our focus from the Lord. जब हमारा जो सोच और विचार इस संसार के प्रति होगा या फिर कुछ पाने का आशा और आकांक्षा रखेंगे, तो परमेश्वर को जानने के लिए हमें क्या होगा ना, प्रभु को जानने के लिए वो हमें बाधा का कारण बन सकता है। But
when we intimately know him day by day, we consider all these things as garbage. सो ये संसार के वस्तु को क्या समझेंगे? हम कूड़ा समझेंगे। जब हमारे मन में उस सच्चा परमेश्वर को, प्रभु को जानने का एक जिज्ञासा जब होगा, तो सांसारिक वस्तुओं को हम कूड़ा समझेंगे। When we consider his greatness, his love, his power, his intervention in our lives, we will know that we are a big zero. Whatever we added to that 0, 0, 0, we are adding everything. Everything is a zero before the greatness of Christ. सो जब हम उस परमेश्वर का महानता को हम जब देखेंगे, उस परमेश्वर की कार्य को हमारे जीवन में हम जब देखेंगे, तब हम लोग क्या समझेंगे कि अपने आप को हम शून्य से लेकर के उस शून्य में 1000 शून्य भी आप जोड़ दीजिए, उतना शून्य भी काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर, हमारा प्रभु जो है, महान, अति महान है। In Colossians chapter 1 verse 10, Paul is praying for the Colossian believers. हम जब कोलोसियों का पत्री उसका पहला अध्याय 10वां वचन को हम जब पढ़ेंगे, तब प्रेरित पौलुस कोलोसियों का विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। There he is praying for many things, but mainly for important things. क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे विषयों को प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के वो वहां पर वो प्रार्थना करते हैं। And one among the four is growing in the knowledge of God. और जो 4 विषय के लिए वो प्रार्थना करते हैं, उन 4 विषय से एक वो प्रार्थना है कि परमेश्वर का ज्ञान में बढ़ते जाने के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। When Paul is thinking about the church at Colossae, and his prayer is all the believers of the church at Colossae should grow in the knowledge of Christ, knowing Christ personally. जब कोलोसिया विश्वासियों के लिए, सभी लोगों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, वो एक महत्वपूर्ण प्रार्थना को वो करते हैं कि कोलोसियों का विश्वासी परमेश्वर का ज्ञान में वो बढ़ते जाएं। Why should we know more about him? हमें क्यों उस परमेश्वर को जानना बहुत अधिक रीति से हमें जानना जरूरी है? That's what Christ has said in Matthew 10:25, that it is enough for students to be like their teachers. और मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 25वां वचन में इसकी जवाब प्रभु यीशु मसीह देते हैं। वो क्या है ना, okay, it is enough for the students to be like the teacher. So एक मास्टर के लिए, अपने गुरु के लिए, जो एक छात्र को उस गुरु के समान बनते जाना, ये काफी है। And learning, we are first learning about him, then we are trying to know him and know him and know him, and we are becoming like him. और इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो उसके बारे में हम जानने का जिज्ञासा रखते हैं, उसके बाद जो है उसके बारे में हम सीखते हैं, उसके बाद हम ये सीखते हैं कि उसको हम जाने और गहराई से जाने। If you really learning from the Lord, if you really knowing the Lord, finally we are becoming like him. जब हम उस प्रभु को जानने के लिए हम लोग जिज्ञासा रखेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे ना, उसके जैसा हम बनते जाएंगे। Peter, one of the disciples of Jesus, has said that to be like Christ, or to have the character of Christ, is enough for the disciples. और पतरस क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मसीह यीशु के जैसा स्वभाव होना एक चेले के लिए काफी है। I was trying to get that reference from First Peter. और उस वचन को मैं उस पद को मैं पाने के लिए कोशिश कर रहा था। पहला पत्रस में लिखा गया है। I hope I can find it later. Okay, मैं उस वचन को मैं पा नहीं पा रहा हूं, लेकिन पहला पत्रस में ऐसा लिखा गया है। Yeah, and we are coming to the 7th mark of discipleship.
और एक सच्चे चेले का जो 7वां चिन्ह को आज हम लोग देखेंगे। When we become like Christ, what will happen in our lives? जब हम मसीह यीशु के जैसा बनते जाएंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? We will be bearing fruits. क्या करेंगे? हम जो है बहुत सारे फल को हम उत्पन्न करेंगे। What does it mean by these fruits? और जो फल लाना उसका मतलब क्या है? There are many aspects of these fruits, but the mainly Bible says the attributes, the communicable attributes of God will be expressed through our lives. सो हम लोग क्या देख सकते हैं ना, ये फ्रूट का व फल का जो है बहुत सारे ऐसे गुण हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो कथनीय वाली गुण व दूसरों को जो है प्रदान करने वाली गुण, वो गुण को हम हमारे जीवन में प्रकट कर सकते हैं। We know that God has some incommunicable attributes. और हम जानते हैं कि परमेश्वर का ऐसे गुण है जो गुण को दूसरों के साथ वो शेयर नहीं कर सकता, वो बांट नहीं सकता। Like omnipotence, omniscience, omnipresence, such kind of attributes cannot be communicated. और हम जानते हैं कि जैसे कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वदर्शी है, ऐसे ज्ञान को व ऐसे गुण को वो दूसरों के साथ बांट नहीं सकता है। But God is love, that attributes can be communicated. लेकिन परमेश्वर प्रेम है, उस प्रेम को जो है उस प्रेम को दूसरों के साथ वो बांट सकता है। How these divine characters will be in us. और वो जो स्वर्गीय गुण जो है हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? Shall we read John chapter 15 verses 5 and 8? आइए हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 5वां और 8वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 5वां और 8वां वचन। यहां पर ऐसा लिखा गया है, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 8वां वचन, मेरे पिता की महिमा इस रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। Here Jesus is saying that we know this chapter and importance of abiding in Christ. Here in this verse, he's saying that he that abideth in me and I in him, the same bringeth much fruit. सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे साथ रहता है वह मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूं, वो व्यक्ति बहुत सारे फल को वो ला सकता है। When I was reading this passage, I thought, what does it mean that I in him and he in me? मैं जब इस अध्याय को पढ़ रहा था तो वो मुझ में है, मैं उसमें हूं, उसका मतलब क्या है? When we consider this, I'm showing some example here. I in him means this is me and this is Christ. I in him means I can picturize like this. So, मैं एक उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूं कि यहाँ पर मसीह है, यहाँ पर मैं हूं, और क्या हो रहा है ना, उस प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना, वो उसमें हमें जुड़ करके रहना। And he in me means this is me and Christ is in me. और के मसीह मुझ में है, उसका मतलब क्या है, ये मैं हूं और प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा। How can this both thing happen at the same time? और ये दोनों चीजें एक साथ में कैसा वो संभव है? I in him and he in me.
How does it happen simultaneously? यस, ये कैसे संभव है? When I was thinking about this matter, I can be in him and he can be in me, but how can I have this simultaneously? Then I figure out that if we have a fellowship with the Lord like this, in this case, I am in him and he is in me, and I am abiding in him and he is in me. That means that's a real fellowship with the Lord. क्या देख सकते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि यदि हम इस तरीके से हैं, है ना, जब हम इस तरीके से हैं तो हम लोग क्या समझ सकते हैं? वो भी मुझ में है और मैं भी उसमें हूं, हम दोनों जो है एक साथ रह सकते हैं, एक साथ वास कर सकते हैं. So the real Christian life, the real joy of Christian life is, we know when we believed in the Lord Jesus Christ for our salvation, he is in us. And sometimes when we are submitting to the Lord, we are in him. But if this happens, we don't have the fellowship, but simultaneously both things happens. I should be in him and he should be in me, and I and the Lord have the real fellowship with each other all the time. That is the time I will be bearing much fruit. So हम यदि वो मुझ में है इस तरीके से या मैं उसमें हूं इस तरीके से, तो हम जो है फल को नहीं ला सकते हैं. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि हम लोग ऐसे एक सहभागिता रख करके हमारा विश्वास जीवन में हम बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत सारे फल को हम उत्पन्न ला सकते हैं. Let me ask you, brothers and sisters, are we really enjoying the fellowship of our Lord Jesus Christ? हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूं. क्या हम जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस सहभागिता को हम आनंद उठा रहे हैं क्या? And when we read Galatians 5 verse 22, the familiar verse, it says about the fruit of the Spirit. जब हम गलातियों का पत्री उसका 5वां अध्याय 22वें वचन को हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा गया है, जो आत्मा का फल को हम लोग वहां पर देख सकते हैं. We are reading there 9 specialities of that fruit. और हम वहां पर जो फल का 9 प्रकार के विशेषताएं को हम लोग देख सकते हैं. I think every one of you may know that love, peace, joy, that list. और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप सभी लोगों को वो जो फल का सूची आप लोगों को मालूम है, प्रेम, धीरज, शांति. Yeah, we may be thinking that if we are controlled by the Spirit, we need to express this character through our life. So जब हम ये सोचते हैं कि जब हम कि प्रभु यीशु मसीह के आत्मा में हैं, तो हम उस आत्मा के जरिए नियंत्रित होते हैं. When we evaluate ourselves, we might be thinking that I have a little bit of love, but I am lacking joy in my life. Maybe long suffering, I need to increase a little bit more. Our evaluations are going like that way. So हम जब अपना जीवन को हम जब इवैल्यूएट करते हैं, परीक्षा करते हैं, उस वक्त हमें ये सोच आता है कि हाँ, प्रेम का स्वभाव, प्रेम का फल तो मेरे जीवन में है, लेकिन धीरज की कमी है. ऐसा हम लोग जो है इस तरीके से हम अपना जीवन को परखते हैं. As we are all created in the image of God, we all have a little bit of love, maybe peace, or this kind of characters in all the human beings. जब हम हमारे जीवन को हम लोग देखते हैं, तो कि ऐसे स्वभाव के हर एक व्यक्ति का जीवन में हम लोग देख सकते हैं. That is why we see these characters are seen even in the non-believers in a little bit. So जो ये स्वभाव है, प्रेम और कुछ भी हो, ये अविश्वासियों का जीवन में भी हम लोग देख सकते हैं. But here, when we see the phrase, it is the fruit of the Spirit. The character, the divine characters, the attributes we express are not our
fruit, it is the fruit of the Spirit. एक रोटी चाहिए, मैं तो अभी दोपहर अभी तो खाई चाय के साथ कल की रोटी रात की थी ना। जीवन में हमें ये पता चलता है कि हमारे जीवन में हम लोग ये पता चलता है कि ये जो स्वभाव हैं, ये स्वभाव कोई साधारण स्वभाव नहीं है, बल्कि ये आत्मा की फल है। This is the communicable attributes of God, the Holy Spirit. और ये क्या है न परमेश्वर के जो दूसरों के साथ बांट सकते हैं ऐसे गुण को हम समझ सकते हैं। The same thing we thought about the abiding in Christ. That's what the same thing we read about the Holy Spirit also in 2 Corinthians chapter 13 verse 14. और उसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर के साथ रहना, और उसके साथ साथ जो पवित्र आत्मा के साथ भी एक सहभागिता रखने वाली बातों को हम देख सकते हैं। कहां पर? ना दूसरे कोरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और 14वां वचन। We always read this verse or recite this verse as a benediction after all our meetings. और ये जो वचन है, इस वचन को हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मीटिंग वगैरह, हमारा जो सभाएं हैं, वो खत्म होने के बाद इन वचनों को जो है हम लोग ले करके आखिरी प्रार्थना को भी हम लोग करते हैं। The love of the Father and the grace of the Son and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. So हम लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी लोगों के साथ बनी रहे। But in this benediction, we are saying all the time we should have these three matters in our lives. So जब हम ये प्रार्थना को, आशीष वचन को तो हम देते तो हैं, लेकिन ये तीन बातें जो है, इन तीन विषय जो है, हमारे जीवन में भी होना बहुत आवश्यक है। Sunday after worship, the benediction is given like this. That means Monday to Friday, every hour, every minute, the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit to be with us every days of our lives. So यहाँ उसका मतलब क्या है? संडे में तो वो आशीष वचन दिया जाता है, लेकिन वो आशीष वचन कब तक? न सोमवार से लेकर के शनिवार तक वो हमारे जीवन में बनी रहे। किसका? न परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता। This fellowship of our Lord Jesus Christ means in our life, our spirit is there and the Holy Spirit is there, and our spirit and the Holy Spirit should have a fellowship like this, as we have seen the abiding in Christ. So हम लोगों ने देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसे एक सहभागिता हम लोग इस तरीके से रखते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना, वैसे ही पवित्र आत्मा के साथ भी हमें सहभागिता रखना है। कैसे? न जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम लोग ऐसे सहभागिता रख रहे थे। When the Holy Spirit is controlling our life and we have the fellowship, our spirit and the Holy Spirit have the fellowship each other, we are going to express the attributes of God, the fruit of the Spirit. So, जब हम पवित्र आत्मा के साथ इस तरीके से हम लोग सहभागिता हम लोग रखेंगे, जो मेरे आत्मा और पवित्र आत्मा जब सहभागिता रखेगा तो क्या होगा? ना हम परमेश्वर की जो बांटने वाली गुण हैं, उन गुणों को हमारे जीवन में हम प्रकट कर सकते हैं। With our own strength and our own exercise, we cannot create the attributes of God in us. So हमारे ताकत, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान के जरिए ऐसे गुणों को हमारे जीवन में हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। It is only by the fellowship of the Holy Spirit and abiding of the Christ we can bear fruit. We can show these heavenly attributes through our life. So ये कैसा? ना प्रभु यीशु मसीह के साथ एक सहभागिता रख करके, पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता रख करके ही वो जो गुण है, वो उन गुणों को कैसा? ना आत्मा का जो फल है
उन फलों को हमारे जीवन में हम ला सकते हैं। Actually, we are not giving this fruit, but the Holy Spirit is giving these attributes through us. It is the fruit of the Holy Spirit, not the fruit of me or any one of us. और ये जो फल है, ये जो गुण है, ये गुण मेरे ओर से नहीं, बल्कि जब हमारा सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ होगा, तब ये गुण को हम जो है पवित्र आत्मा की ओर से हम जो है इन फलों को हमारे जीवन में ला सकते हैं। When we think about electricity, if a positive wire with all the electric power in it, and there is a negative line, and a bulb is connected to that, then that bulb is lighting. सो हम जानते हैं कि जो बिजली की तार होती है, एक तो के पॉजिटिव वाला और दूसरा होता है नेगेटिव वाला, सकारात्मक और जो है नकारात्मक दोनों तार होते हैं। दोनों को जो है बल्ब में हम लोग जो जॉइंट करते हैं, तभी ही वो जो बल्ब है वो जलता है। But in between the negative and the positive lines, if there is a insulator thing, the electricity will not pass to each other. यदि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई इंसुलेटर मतलब जो है उसको रोकने वाली व प्रतिबाधित करने वाली कोई वस्तु होगा, तो ये बिजली जो है एक छोर से दूसरे छोर की ओर जा नहीं पाएगा। Consider this as our life. और ये हमारे जीवन में हम लागू करके जब हम लोग देखेंगे, तब the blue line is our spirit and the red line is the Holy Spirit. जो ये नीले वाले जो तार है, ये जो लाइन है, लकीर है, वो लकीर हम है, हमारी आत्मा, और जो लाल वाली लकीर है वो है पवित्र आत्मा। Even though the all powerful Holy Spirit is living in us, why we are still weak? और जब जो सर्वशक्तिमान पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करते हैं, फिर भी हम क्यों इतना दुर्बल है? You know, see that insulator is a shape of S, and I purposely did like that. और आप देख सकते हैं उसको जो प्रतिबाधक करने वाली जो चीज है वो एस तरीके से वहां पर है। That is a picture of ourselves, our flesh. Yes, please continue once again. That is a picture of our personality or our self or our flesh. और वो क्या होता है ना, हमारा शरीर को दर्शाता है, हमारे शरीर की अभिलाषाओं को वो दर्शाता है। If our self is standing in the middle or sitting on the throne of our heart, we will never experience the power of God, the attributes of God in our life. जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जो अपना जो स्वार्थ यदि वहां पर भरा होगा, तो कभी भी हमारे जीवन में आत्मा के फल को हम नहीं ला सकते हैं, वह पवित्र आत्मा की अनुभव को हम नहीं कर सकते हैं। That's what we saw in the first point of this mark of discipleship, self-denial. और हम लोग वही चिन्ह को, जो पहला एक मसीह का चेले का चिन्ह जो है, पहला चिन्ह को हम लोगों ने देखा था कि अपने आप को इनकार करना। If we deny ourselves, what will happen? जब हम अपने आप को हम यदि इनकार कर लेते हैं तो क्या होता है? The all-powerful God, the Holy Spirit, and Christ, if we have the fellowship with the all-powerful God, we will be transformed into a powerful life. So जब हम हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के साथ और उसके साथ साथ यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि हमारा एक जीवन में यदि सहभागिता यदि रहता है, तो हम क्या ला सकते हैं? हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा एक बदलाव को ला सकते हैं। All the believers have this potential in their life, but they are not using it. और
हर एक विश्वासियों के जीवन में ऐसा जो सामर्थ्य शक्ति है, लेकिन उस सामर्थ्य को व उस कार्य को वो लोग अपने जीवन में अनुभव नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं। Some of the dear believers who are listening to me might be thinking that I am weak, I am not able, I am not good to do the service of the Lord, I am not worthy. Such kind of a thinking may be in our mind. और मेरे को जो सुनने वाले भाई और बहनों में से कुछ ऐसे सोच रहे होंगे, मैं तो बहुत वीक हूं, मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बहुत दुर्बल हूं। ऐसा करके कोई कोई भाई और बहन सोच रहे होंगे। Instead of keeping that attitude as a complex in our lives, if you are surrendering that self-denial in front of the Lord, the power of God is in you, the Holy Spirit is living in you. If you are controlled by the Holy Spirit, if you are abiding with the Lord Jesus Christ, His power is going to channelize through you. सो मेरे प्यारो, आपके जीवन में यदि ऐसा सोच, ऐसा विचार रखेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी आप जो है अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव को नहीं ला सकते। लेकिन अपने जीवन में ये सब कुछ को यदि आप दूर कर देंगे और ये सोचेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे, तो क्या होगा? आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को अपने जीवन में आप ला सकते हैं। How this power is expressed in our life? Is it by shouting or yelling or making such kind of noise? No, it is through it is expressed as the attributes of God, the communicable attributes of God, the fruit of the Spirit. और ये जीवन जो है, ये बदलाव का जीवन कैसे आ सकता है? चिल्लाने से या फिर और कुछ करने से? ऐसा नहीं। आपके जीवन में जो है उस पवित्र आत्मा, उस प्रभु को कार्य करने के लिए देने के जरिए जो है आप क्या ला सकते हैं? ऐसे आपका जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाव को आप ला सकते हैं। I have added one more point to this mark of discipleship today, because this is one of the expression of our the mark of being a disciple of Christ. You are muted. Yes, Acha, once again, please, repeat. Yeah, last week I told you that there are 7 marks of discipleship, but today I have added one more speciality of the discipleship. और पिछले सप्ताह में आप लोगों को जो है 7 ऐसे चिन्हों को बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन आज एक और बिंदु को मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जोड़ दिया है। Because a real disciple will make disciples. और एक सच्चा चेला दूसरों को चेला बनाएगा। A real disciple will make another disciple for Christ, not for himself. और एक सच्चा चेला क्या करेगा? वो अपने लिए चेला नहीं बनाएगा, लेकिन क्या करेगा? और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो चेला बनाएगा। The Lord Jesus Christ, just before he was ascending into heaven, he had made some important statements. और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण करने से पहले एक मुख्य बातों को उन्होंने बताया था। He said, "Go and make disciples." और उन्होंने ये कहा था, जाओ और तुम चेले बनाओ। By sharing the gospel, by baptizing them, and by teaching them. और जा करके सुसमाचार सुना करके उन लोगों को परमेश्वर का वचन को शिक्षा दे करके, उन लोगों को जो बपतिस्मा दे करके। The reason behind that is his authority is behind us and he is with us. उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हमारे साथ है और उसके साथ साथ वो भी हमारे पीछे पीछे हमारे साथ साथ रहते हैं। Also, he has offered that the power of the Holy Spirit will be with them, and they will be witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the end of the earth. और उसके साथ साथ क्या होगा कि पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा की साथ भी जो है रहेगा। कहां तक? ना यरूशलेम से लेकर के यहूदा से लेकर के इस दुनिया के आखिरी प्रांत तक प्रभु यीशु मसीह का साथ हमारे और सामर्थ हमारे साथ रहेगा।
The making of discipleship is not happening just by training. It is by the authority of Christ and the power of the Holy Spirit. और ये जो दूसरों का चेला बनाना, उसका मतलब ये नहीं है कि अपना खुद का अधिकार से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा तालीम दे करके और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा का शक्ति और सामर्थ्य से ही एक सच्चा चेला बन सकता है. When we become a disciple, if we are being a disciple of Christ with all this cost of discipleship, what is our reward? और जब हम इन चिन्हों को बा एक सच्चा मसीह का चेला का चिन्हों को जब हम अनुकरण करके चलते हैं, तो हमारे लिए ऐसी कौन सी रिवार्ड है, हमारे लिए कौन सी ऐसी पुरस्कार है? My time is almost done, so I will go quickly. मेरा समय खत्म हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी से खत्म करने के लिए और प्रयास करूंगा. Here it says it produces much grain or fruitful life. और जब हम यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पुरस्कार क्या होगा ना, बहुत सारे ऐसे दाने को, ऐसे बीज को हम उत्पन्न कर सकते हैं. उसका मतलब बहुत सारे फल को हम ला सकते हैं. Anyone who lose his life will keep it for eternal life. और जो मेरे लिए अपना प्राण को खोएगा, तो वो क्या करेगा ना, अनंत जीवन के लिए वो खो रहा है. Anyone is committed himself to be a servant or a slave of Christ, he will be honored by the Father. और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण करने के लिए वो जो कोशिश करता है, अनुकरण करता है, वो पिता को जो है आदर व सम्मान देता है. Anyone who has giving up his many of the priorities will receive 100 times with the in eternal life. So जो कोई प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जो बहुत सारे ऐसे इच्छाओं को वो सैक्रिफाइस करता है, छोड़ देता है, त्याग देता है, तो वो क्या करेगा ना, अनंत जीवन को वो प्राप्त करेगा. So actually we need to know that when we are surrendering this life and with accepting all the costs of these marks of discipleship in our lives, this is not a loss, it is actually a gain. So जब हम इन चिन्हों को हम जब देखे, एक सच्चा चेला का चिन्हों को जब हम दे करके हम लोग जब चलते हैं, तो ये हमारे जीवन में हम कुछ खोते नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी एक हासिल करने जा रहे हैं. Here we die for Christ. Here we hate our lives in this world. Here we follow Christ on the Calvary road. Here we become servants. We may lose our valuable ones, but actually what we are going to get is we will bear much fruit. We will keep our lives for the eternal value, and we join Jesus where he is in glory, and Father is going to honor us, and we will be rewarded 100 times plus eternal life. So मेरे प्यारो, इस संसार में जब हम प्रभु यीशु मसीह को अनुकरण कर रहे हैं, उस वक्त हम मर भी सकते हैं. उस वक्त इस संसार में जो है हमारे जीवन को हम नफरत भी कर सकते हैं. प्रभु यीशु मसीह के अनुकरण करते समय वो क्रूस को, उस जो कालवरी की रास्ते की ओर हमें चलना पड़ सकता है. हम जो है उसकी दास बन सकते हैं. हमारी जो है बहुत कुछ जो बहुमूल्य व कीमती चीजों को हम खो भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत कुछ मिल भी सकता है. वो क्या है ना, हमारे जीवन में बहुत सारे फल को हम लोग ला सकते हैं. हमारे जीवन में क्या है ना, अनंतता के जो बहुमूल्य चीज को हम लोग पा सकते हैं. प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा जहां पर है, वहां पर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ शामिल हो सकते हैं. प्रभु यीशु पिता हमें आदर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है कि 100 गुना अनंत जीवन हमें परमेश्वर एक आशीष के रूप में प्रदान कर सकते हैं. What a blessed life it is being a disciple of Christ. ओके, हमारे जीवन में कितना धन्य वाली बात है कि एक सच्चा प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना. When we are listening to this, I wanted to challenge you
to take up this road of discipleship. सो जब आप लोग इन बातों को सुनते हो, आप लोगों के लिए मैं एक चुनौती दे रहा हूं कि आप उस प्रभु यीशु मसीह के राहों पर, रास्ते पर आप चलते जाइए. There is a key to become a true disciple. और यहाँ पर एक के सच्चा चेला बनने के लिए एक कुंजी है. The key verse of discipleship is Mark 9:23 and Matthew 16:24. There we see denying himself, taking up the cross, following. But many times we forget one word. If anyone desires, if anyone wishes. सो हम देखते हैं कि जो मार्क रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 23वां वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 24वां वचन, यहाँ पर जो है क्रूस उठा करके चलना, ये सब बातों को, अपने आप को इनकार करना, इन सब विषय को हम लोग देखते हैं. लेकिन दो बातों को हम भूल जाते हैं. वो क्या है? कोई यदि चाहता है वह इच्छा रखता है, उस बात को हम भूल जाते हैं. It is not by compulsion, but by our willingness we are taking up this road of discipleship. सो ये जो है कोई हमें बाध्य नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार इस प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर हम चलने के लिए जो है हम इच्छा जाहिर करते हैं. Let me conclude like this. When we are hearing these three classes, and if you are evaluating the worth of this being a disciple of Christ, and if you desire to follow him, if you wish to follow him, just ask him, Lord, I know this is costly. I need to pay much cost for being a disciple, but I know it is worth. So I desire, I wish, I decide to be a willful follower of you. सो जब हम इन बातों को सुन रहे हैं, तो हमें एक दुआ को, एक छोटी सी प्रार्थना को हम करना चाहिए. प्रभु, मैं तेरे रास्ते तो मैं चलना चाहता हूं, मैं तेरे को अनुकरण करना तो चाहता हूं. मैं जानता हूं कि तेरे अनुकरण करना मेरे लिए बहुत कठिन व दुखदायक भी हो सकता है. लेकिन प्रभु, मैं दुख या कष्ट भी उठाऊं, प्रभु तू मुझे जरूर बहुत सारे आशीष व बहुत सारे अनुग्रह को मुझे मेरे जीवन में तू दे सकता है. Brothers and sisters, when we see from outside, the cost of discipleship is very painful. But when we go inside and when we have real fellowship with the Lord, it is a real life of enjoyment. It's a life of joy and peace and satisfaction. ये जो शिष्यत्व को हम लोग देखते हैं, बाहर से यदि हम लोग देखेंगे तो बहुत दुखदायक है, बहुत कठिन चीज है. लेकिन ये जो सच्चे चेले के राहों पर, मार्ग पर चलना व अंदर घुस करके देखना, तो आपको ये पता चलेगा कि एक बहुत ही कीमती है, बहुत ही आनंद और सुखदाई है मेरे प्यार. We are putting our life blindly the hand of our caring God, and he is taking care of us. We are not worrying about ourselves. He is the master who is taking care of us. जब हम सच्चे चेले के ऊपर हम जब देखते हैं, तो आंख बंद करके उस प्रभु का अनुकरण हम लोग करते हैं. जब हम आंख बंद करके जो है प्रभु का अनुकरण करेंगे, तो वो परमेश्वर, वो प्रभु ही आपका देखभाल करेगा, आपका प्रतिपालन करेगा. When we pray and close this session, I request you to take a step. If you really desire, if you really wish to be a disciple of this loving Christ, just come to his presence and say, Lord, I desire, I wish, I decide to follow you. So जब आप प्रार्थना करने से पहले हम जब जा रहे हैं, तो अपने मन में आप खुद जो है उस प्रभु के पास आइए मेरे प्यारो. आप ये कही है कि हे प्रभु, मैं आपको अनुकरण करने के लिए मैं इच्छा जाहिर करता हूं, मैं आपका अनुकरण, आपके पीछे चलने के लिए मेरा इच्छा प्रकाश कर रहा हूं. प्रभु, मैं आपका अनुकरण करना चाहता हूं. ये दुआ, ये प्रार्थना प्रभु के सामने आप करिए. I really thank you all for the time you have spent together with me, and thank you for inviting me to this special program.
और मैं आप सभी लोगों को धन्यवादी हूं। और ऐसे एक बहुत अनोखा प्रोग्राम में